आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंसान की जिसने अपनी जिंदगी का सारा समय सेवा में गुजारा। हम बात कर रहे हैं ज्ञान सरोवर निवासी सुभाष बाई जी की, जो कि बीते दिनी अपना भौतिक शरीर छोड़ बाबा की गोद में जा विराजे। सुभाष बाई जी का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले में 2 जून 1964 ईस्वी एक साधारण किसान के परिवार में हुआ। आपने ब्रह्म कुमारी संस्था के मुख्यालय माउंट आबू के ज्ञान सरोवर परिषद में भोजनालय कक्ष की सेवा की। पंजाब प्लस चैनल के एमडी रिची गर्ग जी के द्वारा सुभाष भाई के पारिवारिक मेंबर्स और ज्ञान सरोवर के निवासियों के साथ हमारी टीम ने बातचीत की, जिन्होंने सुभाष भाई की बेहद तारीफ की। हमारी टीम के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने सुभाष भाई के जीवन के बारे में हमें विस्तार से जानकारी दी। Gentlemen, welcome to our Punjab Plus TV channel, which I am going to make a documentary picture regarding Subhash Bhai. And I am glad to know that you are the first person, you are from German, and even then you are living in India, in Mount Abu. What will you say? Yeah, thank you very much. I came many years. I think it was 85. I came first time to India, and right from the beginning of Gyan Sarovar, I have been here, and I met, of course, Subhash Bhai many times, because we are looking after the solar kitchen, the solar steel cooking system, as well as after the boilers. And Subhash Bhai was looking after the dining hall. So many times we had, Subhash was always there, and he said, yes, bring them, I will feed them. So he was very cooperative, very friendly, very positive, always smiling. So that I appreciate it very much in Subhash. How your life clicked towards Brahma Kumaris? I was interested in spirituality, and in 1984 I came in contact with Brahma Kumaris in Germany. We have a center at that time in Frankfurt. So I went there in March 1984, and there was an Indian sister, and she introduced me to the knowledge about the cycle of time, about the Supreme Being Shiva, and about Raja Yoga meditation, that you can connect. And I loved it very much. And 1985 I came first time to India, and I felt I'm coming home, like we believe in reincarnation. So I'm very sure in my previous life I was living in India. So when I came back, that was like coming home, I felt like I was in Delhi, the railways, the travel, the people, the friendliness. In general, you can say that Indians are very positive and very interested in foreigners, especially the news, the lifestyle, the diet, what we think, how we feel. And so when I came in the beginning to India, many people have never seen before a foreigner, so it was quite something when you met or you invited to an Indian family. Very generous, very warm-hearted, the people in India, and of course also in Brahma Kumaris. We foreigners are specially treated. We get good food, we get good accommodation, so they look very well after us. When I joined the Brahma Kumaris in '84, I adopted a vegetarian diet, which was not a big problem, because I was not a big meat eater, so to say. And so when I came to India, it was not like a big problem, because I already was 1 year vegetarian. So it became quite easy, and I like actually the Indian food. As long as it's not too spicy, everything is all right. You are married, or you have also devoted your life to Brahma Kumaris? I came at a very young age. I was 24, similar to Subhash. He came also at a very young age to Brahma Kumaris. So I was a bachelor, and I'm unmarried, of course. And you feel that your life will go as a bachelor? Oh, yeah, I feel quite all right, because it allows me to be relatively free, because I've not a responsibility to look materially seen after a family. So I'm a free bird. And I have 2 elder brothers, and some years ago my elder brother, who's a doctor, he examined our lifestyle and our situation. He said, Golo, you have done best, because you have the most easy lifestyle. So it's actually quite okay. I'm going almost every year once to Germany for 2 months, and in winter I go to the UN Climate Conference since 15 years. Brahma Kumaris has an environmental initiative, so we try to inspire people at the United Nations conferences to change their mindset, to change their habits, to change awareness, and meditate a bit, become vegetarian,
and become good people on the inside, because we believe that if you become good on the inside, your actions will become good, and it's good for nature and the environment. So I'm traveling a lot, and I see almost the whole world as my home. So I'm not getting really homesick with Germany too much. And at the moment it's winter, it's very cold. So India in winter is always very, very nice because it's warm. We have the sun, and everything is all right. You know. Well, I spoke the day before with him because I was also a little bit chatting with the film group when they came, and he was taking care and providing making the arrangements. They sit and they get the food and all this. So I was sitting with the film crew, so I had a little bit chit chat also with Subhash Bhai, and there was no signal. And Subhash Bhai was not aware, I was not aware, nobody was aware. And his demise came quite of a sudden. And I think that was also the message which we received, that suddenly things can happen, and we should use our time in a worthwhile way. That's a bit the teaching of his sudden demise. We should use every moment very worthwhile. We should do the best out of our time. And we should have the consciousness that we are guests on this earth. And the soul, the Atma, is the eternal being. And anytime we can leave and take a new birth, you know. So in a way, it's a bit of sadness and shock that he left us so suddenly. But in a way, it's also what we call the drama. It's the flow of things. It had to happen. We accept it, and we wish the soul the best for his future journey. अभी हम देख सकते हैं कि वो बहनें जिन्होंने बहुत लंबा समय सुभाष भाई जी के साथ गुजारा, किचन में ये लोग सेवा कर रहे थे, और सुभाष भाई के साथ इन लोगों का बहुत ही करीबी रिश्ता था। मैं माता जी से बात करूंगा। माता जी, क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा भाई जिसने हमेशा पॉजिटिविटी की, हमेशा उन्होंने हर इंसान के साथ वैसे ही प्यार किया, वैसे मतलब हमेशा उन्होंने सिंप्लिसिटी के साथ और एक गांव वाला इंसान बन के प्यार किया, क्या कहना चाहेंगे? वो तो मेरे बेटे से भी प्यारा था। वो मेरे साथ बहुत अच्छा रहता था, लेकिन सबके साथ ऐसा अच्छा रहता था। वो एक की बात नहीं है। वो भी छोटे हैं तो वो छोटे बनते थे, बड़े हुए तो बड़े बनते थे, बुजुर्ग है तो बुजुर्ग बन जाता था। वो सबके साथ प्यार भरे बातें करते थे, खाना खिलाते थे, बहुत प्यारा था वो। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे? सुभाष भाई बहुत ही अच्छे थे, सबके साथ उनका बहुत अच्छा मिलनसार व्यवहार था, और सबके साथ रिश्ता भी बहुत अच्छा था। तो सुभाष भाई हमारे लिए यादगार रहेंगे, कभी हम उनको भूल नहीं पाएंगे। और माता जी, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी ये कहते हैं ना कि ऐसी मरनी जो मरे और ना मरना होए, जैसे गुरबानी में तो कहता है, क्या कहना चाहेंगे कि ऐसी मौत जैसे वो सोए, आराम से खाया पिया और आराम से सोए, किसी को आवाज़ नहीं दी। भाई जी बिना आवाज़ की दुनिया से परे हो गए। भाई जी इतने अच्छे थे, मीठे प्यारे भाई थे हमारे। हमने कम से कम 1.5 साल मैंने भाई जी से सेवा की है साथ, लेकिन उनका प्यार, हम डाइनिंग वाले सेवाधारी है, लेकिन उनका प्यार हमारे प्रति इतना अच्छा है। कभी हमको उन्होंने पता नहीं चला कि आप सेवाधारी हो और मैं यहाँ का ऑनर हूँ, नहीं, सब समान है। जैसे हमारी थाली में भी वो रोटी खाते थे। लगता है कि बाबा को भी ऐसे सेवाधारियों की जरूरत है। प्यारे बच्चे बाबा को भी जरूरत है। और देखो सेवाधारी तो हम लोग, हालांकि हम लोग रुद्र हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप लोग हैं, लेकिन हम ये तो मानेंगे कि बाबा भी जो है उसको भी ऐसे प्यारे बच्चे चाहिए वहाँ पर। बाबा को भी तो प्यारे बच्चे चाहिए ना। और जैसे दादी बार बार जैसे जो क्लासेस होती हैं तो बाबा बार बार बोल रहा है कि एव रेडी, तो सुभाष भाई ने करके दिखा दिया जी। जरूर वो मिसाल हो गई हमारे लिए। भाई जी की हमारे लिए बहुत बड़ी मिसाल हो चुकी है। तो भाई जी ने हमें सिखा दिया है कि हमेशा एवर रेडी रहो। दर्शकों, पंजाब प्लस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि सुभाष भाई जो आज हमारे बीच नहीं रहे, और जैसे हम भाई जी से बात कर रहे हैं, हमें हौसला दे रहे हैं कि आप घबराइए नहीं, उन्हीं के निमित्त, उन्हीं के जैसे वो सेवा करते थे, जैसे इनको गाइड किया, और थोड़े दिन पहले से ही जैसे उनको लग रहा था कि मेरी सेवा इसी ने संभालनी है, इनको ज़्यादा प्रेशर में, ज़्यादा काम में मतलब वो लगा रहे थे, इनको समझ नहीं आ रहा था कि क्यों ये ऐसे हो रहा है, लेकिन वास्तव में उन्होंने सारी सेवाएं इनको देनी थी, और वही खुशबू जो यहाँ फैलती थी, जो सुभाष भाई करते थे, जैसे विदेशी आते थे
इंडियंस, और उन्होंने एक ओरा बना रखा था, वही ओरा विक्रम जी के साथ भी वैसे ही सेवाएं चलेंगी। विक्रम जी, स्वागत है आपका। विक्रम जी, क्या कहना चाहेंगे कि जैसे आपने लंबा समय सुभाष भाई के साथ गुजारा और बाबा के घर चले गए, वो जैसे बाबा ने यहाँ जरूरत थी, यहाँ लोग प्यार करते थे, सभी लोग ढूंढते थे सुभाष भाई, वैसे बाबा को भी ऐसे सेवाधारियों की जरूरत है। क्या कहना चाहेंगे कि वो चले गए लेकिन यहाँ गैप नहीं होगा, वहाँ उनकी खुशबू, उनकी आशीर्वाद के साथ वो समय वैसे ही चलेंगे। तो वो बहुत ही प्रेमळ और मनमिलाऊ था। वो हर एक से बहुत प्यार से बात करते थे, कभी भी किसी से गुस्से से बात नहीं करेंगे। और जब भी कोई सेवा होती थी तो हमको बताते थे कि ये सेवा करनी है, तो हम भी हमेशा हाजिर रहते थे सेवा के लिए। और हमसे उनका शुरू से बहुत प्यार रहा हुआ है और आगे भी ऐसे ही इससे उनके बाद भी ऐसी सेवा हमारी चलती रहेगी। जैसे उन्होंने सेवा की वैसे ही उसी को आधार रख करके उनके कर कमलों से अब उनके द्वारा हम सेवा कर सकते हैं आगे करके। भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे कि बहुत दिनों से वो जिम्मेदारी ज़्यादा आपको दे रहे थे, आपको लग रहा था कि कोई ना कोई शायद ऐसा ना हो जाए, क्योंकि वो बिजी रहते थे, विदेशी टीम में आई हुई थी, पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और वो सेवा आपको ज़्यादा दे रहे थे। आपको लगता है कि थोड़ा सा जैसे पहले से आप लोग इकट्ठी काम कर रहे हैं, लेकिन इन दिनों में जब जैसे लग रहा है कि थोड़ा सा कोई था चीज़? नहीं, ऐसे तो कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन हम लोग तो हमेशा साथ में रख करके सेवा करते थे, मगर ये तो सिर्फ अचानक का पार्ट है। अचानक। क्या कहना चाहेंगे कि आप काफ़ी लंबा समय उनसे रहे हो, आप भी उनको फॉलो कर रहे हो, जैसे ये प्रेशर सिचुएशन होती है, जब भी कोई बंदा किचन में होता है तो प्रेशर की सिचुएशन होती है, हमने हर तरीके का बजट को भी देखना होता है, साथ में लेना होता है, लोगों को खुश भी करना है, उनको एक बढ़िया नेटवर्क भी देना है। क्या कहना चाहेंगे कि वो चीज़ें कैलकुलेशंस जो थी वो पहले से ही आप लोग जानते हैं और उनको वैसे ही मेंटेन किया जाएगा? हाँ, आगे बाकी सेवा तो चलती रहती है, क्योंकि कोई भी सोल्यूशन हमको मिल जाता है ऊपर और बड़े लोगों से, इसलिए सेवा में कोई रुकावट होगी नहीं, सेवा तो निरंतर चलती रहेगी। और उनके जो उन्होंने सेवा की है वैसी सेवा करने का प्रयत्न हम जरूर करेंगे। अभी हम हैं उस फूल की फुलवाड़ी में, यहाँ सुभाष भाई आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन ये फूल खिले हुए हमें सभी दिखाई दे रहे हैं। वही चेहरे, वही प्रेम और वही भावना, इनमें सेवा की भावना जो लंबे समय से कर रहे हैं। अब सभी समझते हैं कि जैसे बाबा बार बार यही कह रहे थे कि अचानक, और वो सुभाष भाई ने अचानक करके दिखा दिया हमें, लेकिन वहाँ भी उनकी ज़रूरत थी, इसलिए सभी लोग समझते हैं कि ऐसी खुशबूदार और ऐसे जैसे वो बाबा की गोद में ही चले गए। अभी हम बात करेंगे महावीर भाई जी के साथ। भाई जी, स्वागत है आप। जी, ओम शांति। ये सभी सुभाष भाई का बड़े भाई, छोटे भाई और पूरा परिवार है, और वो सुभाष भाई ने इन सबको अपने जैसा बनाया है। भाई, क्या कहना चाहेंगे कि ये लौकिक परिवार है और उसमें आप लोग भी सभी साथ में लौकिक और दोनों परिवार जो साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे कि वो उनके तो सगे संबंधी थे, लेकिन जो खुशबू वो यहाँ फैला गए और जो खुशबू उन्होंने सारे वर्ल्ड में फैला दी, जिस बंदे को एक बार मिल जाते थे वो बंदा उन्हीं का ही हो जाता था। क्या कहना चाहेंगे? जो उसने करके गया हम सब मिलके भी करेंगे तो भी नहीं हो पाएगा। वो इतना अच्छा, इतना प्यार से उसने सेवा करके गया है। क्या कहना चाहेंगे कि लग रहा था कि ऐसे लोग हैं जो इतनी सेवादारी लोग हैं, उनको ज़िंदगी भी बाबा जो है ना वो उसी तरह से ही हम देखते हैं ना कि जो लोग बहुत अच्छे होते हैं उनको जल्दी मतलब ऐसे ही होता है। क्या कहना चाहेंगे? उसने जो करके गया ना, वो क्या क्या करके गया करके वो जाने के बाद हम लोग को मालूम पड़ रहा है। इतना स्वीट एंड शॉर्ट व्यक्ति था वो। क्या कहना चाहेंगे कि वो कोई भी चीज़ होती थी तो वो एक सेकंड्स में माप लेते थे उसको, और तभी उसको मतलब आंसर दे देते थे, तभी उस चीज़ का समाधान निकाल लेते थे। ओम शांति। उनके अंदर परखने की शक्ति बहुत थी।
और सबको अपना बनाने की एक ताकत उनको बाबा ने दिया था ना। जो जैसा आपने बोला, जो बंदा उनको मिलता था वो अपना हो जाता था। वो अपने वाणी से और अपने व्यवहार से वो इतनी अच्छी सेवा करते थे कि पूछो मत, वो बंदा उसको कभी भूल नहीं सकता। क्या कहना चाहेंगे कि आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन जो शिक्षाएं उन्होंने हमें दी हैं और जैसे उनके मन में था कि सभी लोग मिलकर रहेंगे, मिलकर सेवा करेंगे, और जो भी लोग यहाँ आएंगे ज्ञान सरोवर में उनको कभी बिल्कुल नहीं महसूस होने देंगे। हम लोग डबल जो है ताकत के साथ और अपने धैर्य को ध्यान में रखते हुए, इवन मैं जो आज मैं भाई जी के साथ काफ़ी गुस्सा मतलब मैंने करा, लेकिन इनका कोई प्रॉब्लम नहीं, इनकी कोई गलती नहीं थी उसमें, क्योंकि सभी लोग संस्कार के आने के बाद नहा रहे थे और मेरे को फील हो रहा था कि मैं ऊपर टांगा गया। 21 नंबर मेरे को कमरा दे दिया और वहाँ मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा था। मैं उदास था, मतलब मेरे को उधर गुस्सा आ रहा था। और ऐसी जो स्टेजेस है वो आती रहेंगी और संभालनी भी पड़ेंगी। क्या कहना चाहेंगे? सुभाष भाई हमारे परिवार में एक एंजल की तरह से आए और हम सभी को इतना प्यार दिया, और जितने वो प्यारे थे उतने वो न्यारी भी थे। और हम जो यहाँ ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पढ़ाई पढ़ते हैं, उस ज्ञान की पढ़ाई में वो नंबर 1 रहे। और हम सभी को भी बार बार यही शिक्षाएं दी कि अगर जीवन में दिव्य गुण है तभी हम सफल होंगे। त्याग, तपस्या, सेवा का पाठ पढ़ा की गई। और कितने लोगों को उन्होंने उठाया। हमने देखा कि एक एंकर जो है बेटी, बहुत ही यंग ब्लडेड बच्ची, रो रही थी पूरी तरह से, और मदर उसको बार बार आज सतावना दे रही थी। उसके नाक भी बैठ रहा था बच्ची के। बहुत स्मार्ट बेटी थी। और ऐसे कई बच्चे हैं जिनको उन्होंने ज़िंदगी दी है, जिनको उन्होंने इस काबिल बनाया है कि वो ऐसी दुनिया में, ऐसे अपने फील्ड में जाएं, यहाँ पर वो अपने आप को बहुत ऊपर लेकर जाएं। वो एक हमारे सामने एग्जाम्पल थे और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे लोगों को सिखाई हैं और बहुत प्यार से सिखाई हैं। मैं तो यही समझती हूँ कि थोड़ा बहुत भी उन्होंने सिखाए हैं तो वो आत्मा बहुत आगे जाएगी, क्योंकि ये उनकी पालना का और प्यार का रिटर्न है। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। आपके वो तो परिवार वाले थे। मेरे जैसे एक सिंपल बंदे को जब मैं दूरदर्शन की कवरेज कर रहा था चोरी चोरी दादी जानकी जी की, और उस समय पर वो कहते नहीं आ जा यार, इधर आ जा, ऐसे क्यों चोरी क्यों करें, ऐसे डरे क्यों। दादी जानकी के उन्होंने सन्मुख कर दिया मेरे को, और दूरदर्शन के एक प्राइवेट प्रोड्यूसर से उन्होंने मेरे को टीवी चैनल का एक एमडी हूँ मैं। आज मैं एक चैनल चला रहा हूँ 17 साल से। आपके परिवार के लिए तो उन्होंने, मैं सोच सकता हूँ कि क्या क्या किया होगा, लेकिन मेरे जैसे एक देसी बंदे से, गांव का रहने वाला हूँ मैं, नो डाउट पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन रहने वाला गांव का हूँ, और मेरी ज़िंदगी में उन्होंने खुशबू डाली है। और जब भी मेरे को होता था, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को मतलब अहंकार ही एक तरह का करता था कि ला मेरा सुभाष भाई बैठा होते। जब भी मेरी बात होती, मेरी वाइफ जो है वो, हम 25 साल से ज्ञान में चल रहे हैं, मेरे को होता था कि मेरी टॉर बने तो मैं सुभाष भाई को बोलना, भाई मैं बाबा ने आना है, बाबा के मिलना है, मैंने आगे बैठना है। कहता ठीक है। वो अपने लिए कहें या ना कहें, उन्होंने अपने लिए कभी नहीं कहा होगा कि मेरे को सीट आगे चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन मेरे लिए वो फिर से उनको होता था नहीं मेरा भाई है यार, कोई नहीं रिची भाई तू आगे बैठेगा। मतलब ऐसी मेरे को मतलब हौसला रहता था कि मेरा सुभाष भाई है वहाँ पर। जब भी मैं पंजाब में माउंट आबू की बात सोचता था तो मेरे को सिर ऊंचा रहता था, अरे मेरा सुभाष भाई बैठा वहाँ पर। मैं अकाल तख्त के जथेदार को शिवानी बहन जी से मिलाया मैंने अमृतसर में। वो कहते थे गायकार को लेकर आना है। मैंने वो जो सूफी गायक है उसको मैंने बात कराई फ़ोन के साथ। मेरी भी वो जो ड्यूटी लाते थे पंजाब में, मैं वैसे करता था। शिवानी बहन जी गए तो कहते लाइव करना है तूने सारा। हमने लुधियाना से शिवानी बहन जी का सारा लाइव किया और शिवानी बहन जी की इंटरव्यू उन्होंने कराई। तो मेरे लिए तो भाई बहुत ही ज़्यादा, आप तो परिवार वाले हैं और उनके संबंधी हैं, मैं तो देसी बंदा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सारे परिवार का मेरे को टाइम देने के लिए। सो मच आप आए, हम लोगों को बहुत खुशी हुई और आपने ये जो भी बात की है उससे हम लोगों को और आपसे भी सीखने को मिला। ऐसे ही आप आते रहिए, ठीक है। आप सभी ने रुद्र नहीं होना प्लीज़, ठीक है ना बहन भाई, सारे मेरे बहन भाइयों, आपने रुद्र नहीं होना, कभी भी उदास नहीं होना सुभाष भाई के लिए। वो बाबा की गोद में गए हैं, मैं भी अपना हौसला करूंगा, आप लोगों ने भी करना, ठीक है जी, वादा है ना सभी का। लेकिन आप भी कंटिन्यू करना जो आपकी बीवी कर रही है, वैसे ही बीवी जैसे है और सुभाष भाई जैसे बन के दिखाना।
ठीक है, अगले बार जब आओगे ना तो आप सुभाष भाई जैसे बन के दिखा